اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی سے لطف اندوز ہونا پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ اچھا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ روزمرہ کی زندگی سے لطف اندوز ہونے میں خوش آمدید۔ آج میں آپ سے زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے وقت نکالنے سے متعلق بات کروں گی۔ جی، میں نے کہا اپنی زندگی سے لطف اٹھانا اور اس کے لیے وقت نکالنا۔ یوحنا 10:10 لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، لیکن یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، یہاں تک کہ وہ بہہ نکلے۔ اب آپ جانتے ہیں یہ میرے نزدیک ایک ضروری موضوع ہے، کیونکہ سچ کہوں تو میں نے واقعی تب تک اپنی زندگی کا لطف اٹھانا شروع نہیں کیا تھا جب تک میں شاید 40 برس یا شاید 50 کے آس پاس نہیں پہنچی تھی۔ آپ کہیں گے اچھا کیوں نہیں؟ کیا آپ ایک خراب زندگی جی رہی تھی؟ اچھا، میرا بچپن خراب گزرا تھا، میری شروعات اچھی نہیں تھی، لیکن میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ میں اپنا اختتام اچھا بناؤں گی۔ اور ایک چیز جو میرے لیے مشکل تھی وہ یہ تھی کہ میں واقعی کبھی بچوں کی طرح رہی ہی نہیں۔ تو میں آرام یا سکون یا محفوظ محسوس کرنا یا بس لطف اٹھانا نہیں جانتی تھی اور ان سے ناواقف تھی۔ میرا باپ ایک شرابی تھا، مطلب کہ وہ ایسے تھے جن کے ساتھ گزارا کرنا مشکل تھا، اور وہ ناخوش تھے۔ اور میں نہیں جانتی کہ آپ نے غور کیا ہے یا نہیں، لیکن جب کوئی ناخوش ہوتا ہے تو وہ عام طور پر نہیں چاہتے کہ آپ بھی خوش رہیں۔ اور مجھے یاد ہے میرا باپ ہر بات سے تنگ ہوتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ہنسنے پر میری اصلاح کی جاتی تھی۔ تو کہیں نہ کہیں اس سب میں نے سیکھا کہ سنجیدہ رہنا اور محنت کرنا زیادہ قابل قبول تھا بنسبت آرام کرنے اور ہنسنے اور خوش ہونے سے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ مجھے کبھی بھی بچپن گزارنے کا موقع نہیں ملا، اور اس میں مجھے واقعی ایک لمبا عرصہ لگا یہ ماننے میں کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا لطف اٹھاؤں۔ اب میں نہیں جانتی کیوں، کیونکہ میں نے کبھی خدا کو ایک مطلبی شخص یا ایک غسیلے شخص کے طور پر بالکل نہیں دیکھا، لیکن یہ خوشی کی چیز اب یہ مل کر ایک دوسری چیز بن جاتی ہے، کیونکہ میرے نزدیک اگر آپ نے کام کیا ہے اور آپ اپنا کام وقت پر پورا کر رہے ہیں اور آپ اپنی زندگی کے وقت میں پھلدار ہیں اور آپ نے کچھ اخذ کیا اور آپ کے ان کاموں کی وجہ سے لوگ خوش ہوئے۔ میں نے شروعات میں اپنی مسیحی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس قانون کے نیچے گزارا جس سے شکر ہے کہ ہمیں چھٹکارا ملا، کیونکہ میں وہ کرنے کی کوشش میں اتنی مصروف تھی جو میں سمجھتی تھی کہ خدا چاہتا ہے میں کروں تاکہ وہ مجھے قبول کرے، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں آرام تک کر سکوں اور خوش رہوں۔ اور جو چیز مجھے سیکھنی تھی، اور شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو سیکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ مجھے یہ سیکھنا تھا کہ وہ پہلے ہی مجھے قبول کر چکا ہے کہ ہم مسیح یسوع میں قابل قبول بنائے گئے ہیں۔ خدا میری راست بازی کی وجہ سے مجھے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ میرے پاس اس کے لیے اپنی خود کی اتنی راست بازی نہیں ہے کہ وہ کبھی مجھے قبول کرے، لیکن مسیح کے وسیلہ سے جس نے میرے اور آپ کے گناہ اٹھا لیے اور ہمیں اپنی راست بازی دے دی، یہ درست ہے۔ 2 کرنتھیوں 5:21 میں جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں، یا مسیح یسوع میں خدا کی صداقت۔ خیر، میں اس سے ناواقف تھی۔ میں ہمیشہ وہ کمانے کی کوشش کرتی تھی جو میرے پاس پہلے سے ہی موجود تھا۔ اگر آپ ہر وقت وہ کمانے حقدار ہونے کی سوچ میں رہیں گے تو آپ کبھی بھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ آپ آرام کر سکتے ہیں اور خوش ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے جیسے میں خدا میں بڑھتی گئی، جب یہ ہوا تو میں پہلے سے ہی کلام سنا رہی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک شام صوفے پر لیٹے ہوئے، آرام سے صوفے پر لیٹے ہوئے، اور میں ایک فلم دیکھنے والی تھی، اور میرے پاس کچھ پاپ کارن تھے اور کچھ جمع ہوا دہی۔ مجھے لگا میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور میرے ارد گرد ایک قسم کا گناہ گار ہونے کا غیر واضح احساس تھا۔ یہ اصل میں ایک جارحانہ احساس نہیں تھا، لیکن بس ایک غیر واضح احساس کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے
आखिरकार खुदा से ये कहा। मैंने कहा, मैं जिस भी वक्त आराम करने की या खुद से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश करती हूँ तो क्यों मैं खुद को गुनाहगार महसूस करती हूँ? और उसी वक्त खुदा ने मेरे दिल से कलाम किया और कहा, क्योंकि तू नहीं समझती कि तू खुद से लुत्फ उठाने की हकदार है। तो देखिए, मेरी मुसीबत उन सारे रास्तों से वापस आई जो कि शर्म और गुनाह और इल्जाम थे जो मैंने बचपन में महसूस किए। लेकिन जब हमारी नई पैदाइश होती है, जब हम मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो वो हमारे तमाम तर गुनाहों और सजाओं को अपने ऊपर ले लेता है। आपको खुद को मजीद सजा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कामिल इंसान नहीं हैं। और खुदा चाहता है कि आप अपनी जिंदगी से लुत्फ उठाएं। उसने आपके गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए यीशु को भेजा ताकि आप अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा सकें। और बेशक आप दिन के शुरू में सब खराब कर दें और आप कुछ ऐसा कर दें जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और सच्चाई के साथ खुदा के पास जाकर आप अपने गुनाहों का इकरार कर सकते हैं और वो फौरन आपको माफ कर देगा। और जैसे पूरा पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारे गुनाह हमसे दूर कर दिए हैं, और बाइबल कहती है वो उन्हें याद नहीं करेगा। और जब गुनाह माफ हो जाएंगे तो कसूर भी दूर हो जाएंगे। जरा सोचें, आप आगे बढ़कर अपने दिन से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। आपको खुद में परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने उस दिन कोई गलती कर दी है। क्या आप जानते हैं, बाइबल कहती है नहमिया की किताब में, खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। और मैं बहुत बार ये सोचती हूँ, इब्लीस हमारी चीजों के पीछे नहीं पड़ा हुआ। वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि मेरी गाड़ी खराब कर दे या मेरे फ्रिज को बंद कर दे या बेसमेंट में मेरे पाइप खराब कर दे। वो मेरी शादमानी हासिल करना चाहता है, तो वो हालात को इस्तेमाल करता है। वो लोग जिनके साथ गुजारा करना मुश्किल है, मुख्तलिफ अक़साम के मसाइल और हमारी खुशी चुराने के लिए फितने और आजमाइश। आज मैं आप सबके लिए चाहती हूँ, अपनी जिंदगी से लुत्फ नहीं उठाते जैसे उन्हें उठाना चाहिए। चलिए, क्या आप वहां मौजूद हैं? जिंदगी बस धुंधले तौर पर गुजरती जा रही है और आप रोज वही करते हैं जो आप समझते हैं कि शायद आपको करना चाहिए, मगर आप अपनी जिंदगी के सफर से लुत्फानंदोज नहीं हो रहे। कुछ अर्सा पहले मैंने एक किताब लिखी जिसका उन्वान आप जहां भी हैं अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज हों। मैं नहीं जानती कि वो अभी तक छप रही है या नहीं, लेकिन आप मेरी तालीमात में बहुत बार इस किस्म के मौज़ूआत सुनेंगे, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि आप अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज हों। वो चीज जो वो आपको अपनी जिंदगी से लुत्फ उठाने से रोकने के लिए करता है, वो आपको खुद से लुत्फानंदोज होने से रोकने की कोशिश करता है। अपने आप में नुक्स तलाश करना कितना आसान है। मुझे पसंद नहीं मैं कैसी दिखती हूँ, मुझे मेरा रद्द-ए-अमल पसंद नहीं, मुझे अपनी जिंदगी पसंद नहीं, मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं, मुझे अपने पड़ोसी पसंद नहीं। मतलब हम ऐसी हर तरह की चीजें तलाश कर सकते हैं जो हमें पसंद नहीं, और फिर हम समझते हैं कि क्योंकि मैं बहुत सी गलतियां करती हूँ, या मैं खुद को पसंद नहीं करती क्योंकि मैंने कॉलेज जाने की कोशिश की और मैं इतनी लायक नहीं थी कि अच्छे नंबर ले सकूं, तो मुझे छोड़ना पड़ा। जो भी है, इब्लीस नहीं चाहता कि आप खुद को पसंद करें। वो नहीं चाहता कि आपका खुद के साथ एक अच्छा रिश्ता हो, क्योंकि अगर आप खुद को पसंद नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपनी जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जहां भी जाएंगे खुद को वहीं पाएंगे। इसके बारे में सोचना शुरू करें। कैसा होगा अगर आपको 1 घंटा किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारा करना पड़े जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते? अच्छा, ये कुछ ऐसा है जिससे आप खौफजदा होते हैं और आप उस मुलाकात के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और आप उनके साथ रहते हुए परेशान होते हैं, लेकिन आप खुद के साथ हर वक्त मौजूद होते हैं। तो अगर आप खुद को पसंद नहीं करेंगे, और मैं हैरान हूं कि अभी कितने लोग मुझे देख रहे हैं और आप लोग अभी इस वक्त खुद पर गुस्सा हैं क्योंकि आपने कोई गलती कर दी थी, और मैं आपको बताती हूँ आप इसी वक्त खुदा से माफी मांग सकते हैं और आप दिल से ये मानते हैं, वो आपके गुनाह दूर करके आपके कसूर माफ कर देगा। लेकिन अगर आप ये यकीन नहीं रखते कि वो ऐसा कर सकता है, तो बेशक आप माफ कर दिए गए हैं और ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप खुद को कसूरवार ठहराएं। आप फिर भी कसूरवार और बुरा महसूस करते हैं। आप में से कितने खुद को पसंद नहीं करते क्योंकि जैसा आप चाहते हैं वैसे नजर नहीं आते? खैर, आप जानते हैं एक वक्त था जब मुझे अपनी आवाज से नफरत थी। मेरा ये मतलब नहीं, बस 2 दिन पहले हमने अपने घर में अलार्म बंद किया, और अलार्म कंपनी वाले हमेशा हमें कॉल करते हैं जब हम अलार्म बंद करते हैं, क्योंकि आपको अपनी मालूमात उन्हें देनी पड़ती हैं। और कंपनी से एक लड़की ने कॉल की और कहा, जी सर। उसने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया तो उसने कहा, दोबारा बताइए।
और मैंने उसे बताया जॉइस, और मैं जानती हूँ कि उसे लगा कि मैं जॉर्ज बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी आवाज बहुत सी औरतों की आवाज से बहुत भारी है। कोई शख्स जो मुझे फोन पर नहीं जानता, वो हमेशा, मेरा मतलब हमेशा, समझते हैं कि मैं एक मर्द हूँ। अच्छा, आप जानते हैं मुझे इससे बहुत ज्यादा उलझन होती थी। मैं चाहती थी कि मेरी भी मीठी और प्यारी आवाज होती, जिस तरह बाकी बहुत सी खवातीन की होती है। लेकिन जानते हैं, फिर खुदा ने मुझे ये एहसास दिलाया कि उसने मुझे ये आवाज उस मकसद के लिए दी है जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए, खास तौर पर अगर आप एक मर्द हैं, तो क्या आप मुझे सुनते अगर मैं इस तरह होती कि अच्छा, मैं समझती हूँ कि टीवी पर आना इतनी अच्छी बात है और मैं इससे बहुत लुत्फ अंदोज होती हूँ। खुदा ने मुझे दिलेर, कुव्वत से भरी हुई और मजबूत आवाज दी है। ये शायद बाकी औरतों के जैसी नहीं है, मगर ये मेरी है। और मुझे अब जरा भी परवाह नहीं है कि कभी कभार फोन पर कोई ये समझे कि मैं मर्द हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। और देखिए, अगर आप जानते हैं कि आप कौन हैं, अगर आप जानते हैं कि आप खुदा के हैं, आप उसके फर्जंद हैं, फिर आपको उन चीजों से जो आपके साथ वैसी नहीं है जैसी किसी और के साथ हैं, परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी जिंदगी से खुश हो सकते हैं। लिखा है, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानीद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। और मैं समझती हूँ हमें इस पर गौर करना है। जैसे खुदगर्ज मत बनो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत को यकीनी बनाएं, लेकिन बहुत से लोग खुद से प्यार नहीं करते। कुछ समझते हैं खुद से प्यार करना गलत है, और मैं ये नहीं कह रही कि खुद से मोहब्बत रखें और खुदगर्ज बने और बस अपने बारे में ही सोचते रहें। मैं बस ये कह रही हूँ कि खुद से मोहब्बत रखें जिसे खुदा ने बनाया है, और वो कहें जो खुदा ने आपको देखकर बोला था अच्छा है। मैं पैदाइश की किताब पर गौर कर रही थी और मुझे ये बहुत पसंद है, खुदा तख्लीक का काम करते हुए। अगर आप अपनी बाइबल में से पैदाइश की किताब को खोलें और आप इसको देखिएगा, जब मैं ये खत्म कर लूंगी, उसने सब तख्लीक किया, रोशनी, मछली, दरख्त, पौधे, लोग, ये तमाम चीजें। तकरीबन हर आयत में जब उसने कुछ तख्लीक किया लिखा है और खुदा ने देखा कि बहुत अच्छा है। क्या आप जानते हैं, खुदा ने बेमकसद कुछ नहीं बनाया और उसने आपको बनाया है, तो आप बेकार नहीं हैं। आप शायद हर काम अच्छे से ना कर सकें, मगर आप अच्छे हैं। और दूसरी बात जो मुझे इन आयात में से पसंद है, वो ये कि खुदा ने अपनी बनाई हुई चीजों से लुत्फ अंदोज होने के लिए वक्त निकाला। दूसरे लफ्जों में कहते हैं, उसने जमीन के पानी को मछलियों और तमाम तर समंदर के जानदारों से भरा। और मेरा ख्याल है कि बस वो आराम से बैठा और थोड़ी देर उसको देखा और कहा, ओ ये वाकई बहुत अच्छा है। आप जानते हैं, क्या हम जरा भी वक्त निकालते हैं जब हम मेहनत करते हैं और ये सोचकर उसका लुत्फ उठाते हैं कि ये वाकई बहुत अच्छा है। और ये गलत तरह से फख्र करना नहीं है, ये उस काम का लुत्फ उठाना है जिस पर आपने अपना वक्त सर्फ किया है। कितने लोगों का अपना प्यारा सा घर है, लेकिन उनकी जिंदगी धुंधलाहट का शिकार हो गई है कि वो कभी भी वक्त नहीं निकालते कि बस कभी बैठकर इन सब चीजों को देखें जो खुदा ने उन्हें दी हैं। इफ्सियों 5 बाब की 15 से 17वीं आयत तक बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि हमें हंसने के हर मौके का फायदा उठाने की जरूरत है। हमें ज्यादा हंसी की जरूरत है। हंसना आपके लिए अच्छा है। आज सुबह जब मैं जागी, मैं अपने फोन को अपने बेड के करीब चार्ज करती हूँ, और हमारे 4 बड़े बच्चे हैं और 12 पोते पोतियां हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो आसानी से मुझसे राब्ता कर सकें अगर उन्हें किसी भी वजह से मेरी जरूरत है। अक्सर जब मैं उठती हूँ तो मेरे फोन में मैसेज और ईमेल आए हुए होते हैं। तो आज सुबह मेरे फोन में एक मैसेज था जिसमें लिखा था, बाबा अब नेटफ्लिक्स पर हैं। और मैंने सोचा, मैं नींद में थी, मैसेज देखा कि बाबा नेटफ्लिक्स पर हैं। मैंने सोचा, डेव नेटफ्लिक्स पर क्या कर रहे हैं, वो वहां कैसे पहुंच गए, डेव ने ऐसा क्या किया जो वो वहां पहुंच गए। और मैंने
देखने के लिए उसे खोला और मुझे एहसास हुआ कि एक नया टीवी शो आया है जिसका नाम है बाबा। मुझे वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो शो अभी टीवी के उस चैनल पर नशर हो रहा है। अच्छा, और ये मेरे लिए कुछ दिलचस्प था, तो मुझे इस बात पर काफी हंसी आई। क्या आप जानते हैं, खुद पर हंसना सीखें, खुद पर इतने सख्त मत हों। फैसला करें कि आप अपने दिनों का लुत्फ उठाएंगे, सिर्फ धुंधले तौर पर उनमें से गुजर कर नहीं, या कुछ हासिल करने की कोशिश में मसरूफ रहकर, क्योंकि आप समझते हैं कि अगर हर वक्त आप कुछ हासिल नहीं कर रहे तो खुदा आपसे खुश नहीं होगा। ज़ुबुर 90 की 12 में लिखा है, हमको अपने दिन गिनना सिखा। मैं समझती हूँ इसका मतलब जिंदगी जितना आप ज्यादा जल्दी समझते हैं उससे कई गुना जल्दी गुजरती है। किसी को मैंने कहते सुना कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये हफ्ता इतनी जल्दी और इतनी तेजी से गुजर गया है। खैर, आप जितना ज्यादा मसरूफ होंगे उतनी ही तेजी से जिंदगी भी गुजरेगी। और मैं समझती हूँ कि बहुत से लोग इतने मसरूफ हैं और उन्हें थोड़े आराम की जरूरत है। क्या आप हर वक्त मसरूफ होते हैं और नहीं जानते कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि आप आराम से जिंदगी नहीं गुजार रहे कि आप पूरी तरह महसूस कर सकें कि आप क्या कर रहे हैं। जानते हैं, एक बार मैंने ऐसा ही कुछ पढ़ा था जिसका नाम था खुदा की तर्ज। क्या आप सोच सकते हैं कि यीशु एक गांव से दूसरे गांव जल्दी जा रहे हैं? नहीं, उसका इलाही तर्ज था। मैं समझती हूँ अगर हम रूहुल कुद्दुस की क़यादत में उसके पीछे चलें, हमारी जिंदगी में भी एक इलाही तर्ज होगा। दिन के आखिर में मुझे वक्त निकालना पसंद है। मैं ये हर रोज नहीं करती, लेकिन मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं इससे लुत्फानंदोज होती हूँ। और बस वो तमाम चीजें सोचना जो मैंने उस दिन की, जैसे अगर मैं सिर्फ आज के बारे में सोचूं, मैंने कॉफी पी और कुछ वक्त खुदा के साथ गुजारा, फिर मैंने थोड़ा सा खाना खाया और उसके बाद नहा धोकर साफ हुई, फिर उनमें से कुछ लोगों से बातचीत की और फिर मैं टीवी स्टूडियो जाने के लिए तैयार हुई और रिकॉर्डिंग और कुछ काम किए जो मुझे यहाँ करने की जरूरत थी। और फिर मेरी एक और मुलाकात थी जहां मैंने जाना था और इसके अलावा भी कुछ काम किए। और मैं बस दिन के आखिर में पहुंचकर ये नहीं सोचना चाहती कि मैंने पूरा दिन क्या किया। ये अच्छा है, बेशक आपने पूरा दिन काम किया, वो सब याद करना अच्छा है कि आपने क्या किया और आपने क्या कुछ हासिल किया, और आप ऐसा महसूस नहीं करते कि आप इस सब में से अचानक गुजर गए हैं और ये तक नहीं जानते कि आपने क्या किया। आप जानते हैं, यीशु के पास हमेशा लोगों के लिए वक्त था। मसरूफियत के बाइस हम अपनी हसासियत खो देते हैं। यकीनन आप किसी ऐसे के साथ हो सकते हैं जो कि बहुत तकलीफ में है, मगर आप इतनी जल्दी में होते हैं कि आप ये भी महसूस नहीं कर पाते कि खुदा ने आपको ऐसे मकाम पर रखा है कि आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस हो सकते हैं। उन्हें ये बताकर खुश कर सकते हैं कि खुदा आपसे प्यार करता है, या ये बताकर कि आप खुदा के लिए बेशकीमती हैं। यीशु ने कोई मौके नहीं छोड़े। वो हमेशा कहीं ना कहीं जाते हुए भी लोगों के पास रुकने के लिए वक्त निकालता था। मरकज 10:46 कहती है, और वो यरीहू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। वो रुका, यीशु अंधे बरतमाई के लिए रुका। यीशु उस कोढ़ी के लिए रुका जिसको शिफा की जरूरत थी और वो कहीं जाने के रास्ते में था। वो उस औरत के लिए रुका जिसका खून जारी था। उस सूबेदार के लिए रुका जिसका खादिम बीमार था। वो बेवा के लिए रुका जिसका बेटा मर चुका था और दरअसल उसे मुर्दों में से जिंदा करने के लिए भी वक्त निकाला। हर बार जब उसे इस तरह के हालात का सामना होता, वो कहीं जा रहा होता था, मगर हमेशा उसके पास रुककर मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने का वक्त होता। क्या आपको नेक सामरी की कहानी याद है कि कैसे वहां एक शख्स था जिसको मारा गया था और वो सड़क के किनारे पर पड़ा था, खून से भरा और मदद का मुंतजिर, और दो मुख्तलिफ लोग जो के देखने में मजहबी लोग लगते थे सड़क की दूसरी तरफ से गुजर गए क्योंकि वो उसे निमटने के लिए वक्त निकालना नहीं चाहते थे। लेकिन सामरी रुका और उस आदमी की तीमारदारी की, अपने गधे पर उसको सवार किया, उसे सराय में ले गया और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। उसने खर्च पर कोई हद भी नहीं रखी। उसने बस कहा, मैं इस आदमी की अच्छी खबरगिरी चाहता हूँ, हमें भी जरूरत है,
اس طرح کا زیادہ کام کریں۔ ہمیں یقین دہانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود دکھی لوگوں پر غور کریں اور ہم وقت نکالیں جس سے ان کی زندگی بہتر بن سکے۔ وائس 2:22-24 میں لکھا ہے، یہ سلیمان تھا جس نے کہا، کیونکہ آدمی کو اس کی ساری مشقت اور جانفشانی سے جو اس نے دنیا میں کی کیا حاصل ہے، کیونکہ اس کے لیے عمر بھر غم ہے اور اس کی محنت ماتم ہے، بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا۔ یہ بھی بطلان ہے۔ اس کو بھی ذرا غور سے سنیے۔ بس انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت کے درمیان خوش ہو کر اپنا جی بہلائے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بھی خدا کے ہاتھ سے ہے، اور وائس کی کتاب میں بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ یہ اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ اس کتاب کا آغاز سلیمان کے ان الفاظ سے ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائیں اور میں نے اپنے لیے پاکستان لگائے۔ ایک چیز جس پر میں نے غور کیا وہ یہ ہے کہ ہر بار جب اس نے کوئی بھی کام کیا، لکھا ہے کہ اس نے خود کے لیے کیا۔ یہ اس کی پریشانیوں کی وجہ میں سے ایک تھی، وہ خود غرض اور اپنے بارے میں سوچنے والا شخص تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ خود غرض لوگ خوش نہیں رہتے۔ مگر اسے وقت کے ساتھ ساتھ حکمت حاصل ہوتی گئی، کیونکہ وائس 4:7-8 میں لکھا ہے، اور میں نے پھر کر دنیا کے بطلان کو دیکھا، کوئی اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بھائی، تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں، اور اس کی آنکھ دولت سے سیر نہیں ہوتی، اور وہ کہتا ہے، میں کس کے لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں۔ یہ بھی بطلان ہے۔ ہاں، یہ سخت دکھ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے محنت کی اور سب کام کیے اور سب کچھ آزمایا، مگر اس نے کبھی عیش نہیں کی۔ کیوں میں اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں؟ یہ بھی بطلان ہے۔ ہاں، یہ سخت دکھ ہے۔ آپ جانتے ہیں کیا، اس نے کبھی رشتوں کو وقت نہیں دیا۔ اس کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، چاہے وہ کتنی بھی محنت کرتا، جبکہ اس کے کام کی بدولت وہ امیر ہو چکا تھا، وہ ان سے لطف اندوز نہیں ہوتا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے آپ کو دیا آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ میرے شوہر کا دولت کے بارے میں ایک بہت اچھا فلسفہ ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دیجئے، کچھ بچائیے اور کچھ خرچ کیجئے، اور پھر خدا آپ کی حیثیت بڑھا دے گا۔ ہاں، خدا نہیں چاہتا کہ آپ اپنا سب کچھ لٹا دیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے کچھ پیسے ان چیزوں پر خرچ کریں جن سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اس نے کبھی خود سے یہ نہیں پوچھا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی میں خوش کیوں نہیں ہو رہا۔ ان کی زندگی دھندلے طور پر گزر گئی، اور پھر اس نے کہا، میں اپنی جان کو خوشی سے کیوں محروم رکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کا فیصلہ کریں، اپنی زندگی بسر نہ کریں بلکہ اس سے خوش ہوں، بچوں سے اور ان کے بچپن سے لطف اندوز ہوں۔ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں اب واقعی اپنے بچوں سے لطف اندوز ہوتی ہوں۔ اب وہ بڑے ہو چکے ہیں، میں نے پوتے پوتیوں کے بچپن سے لطف اندوز ہونا سیکھ لیا ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں تھی، لیکن میں اپنے بچوں کا خیال رکھتی تھی، میں ان کے ساتھ بیٹھنے اور کھیلنے کے لیے ہمیشہ مصروف تھی۔ یہ ایسی باتیں جن کی خواہش میں اب کرتی ہوں، جنہیں کرنے کے لیے میں اس وقت بہت مصروف تھی، کیونکہ میں کچھ نہ کچھ کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ گھر کو صاف کرنا جو اگلے دن پھر گندا ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر کو صاف نہیں رکھنا، مگر کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو سب کاموں سے برتر ہوتے ہیں۔ صرف شادی مت کریں بلکہ اس شادی سے لطف اندوز ہوں۔ اور نئے عہد نامہ میں بائبل بھی ایک عورت کو اپنے شوہر سے خوش رہنے کا حکم دیتی ہے۔ کسی کانفرنس میں جب میں یہ بات کرتی ہوں تو خواتین بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں، مگر یہ سچ ہے، ہمیں وقت نکال کر اپنی زندگی میں موجود لوگوں سے لطف اندوز ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا نے آپ کی زندگی میں بیش قیمتی لوگ رکھے ہیں اور آپ کو ان سے خوش ہونے کے لیے وقت نکالنا ہے۔ ایک گھر خرید کر صرف اس کے پیسے مت بھریں بلکہ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ یوحنا 10:10 چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، کثرت سے جب تک کہ پیالہ لبریز نہ ہو جائے۔ یسوع نے کہا وہ چاہتا ہے کہ آپ بھرپور شادمانی حاصل کریں، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اسی طرح کی شادمانی سے بھر جائیں جیسی اس کے پاس ہے۔ آج یہ فیصلہ کریں کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس سے لطف اندوز ہوں گے، کیونکہ خدا ایسا چاہتا ہے۔